So, hi everyone, and we are here back. We got a really amazing response, so we are here to talk about another interesting topic with my father, and this would be on the teachings of Bhagavad Gita. So, Papa, what are you gonna talk about today? Sakshi, as you must be aware, on 26th of January, a few days back, we launched our channel with the name Krishna Kunji, and the response has been phenomenal. And keeping that in mind, I have decided that we'll start a series which would have great learnings from Bhagavad Gita, and every time we'll take one big learning that I think Bhagavad Gita has for each one of us. So we are actually kicking off that series today, and today's topic for the purpose of today's discussion is the civilized discourse that I find is a very differentiated learning from Bhagavad Gita. And I believe, although much has been said about various aspects of Bhagavad Gita, but this needs to be elaborated. So, therefore, we are going to discuss this today. Oh, quite interesting. So, what does Bhagavad Gita convey about civilized discourse? Uh, if you look at the total dialogue that took place between Arjun and Lord Krishna, you'll find that throughout the discussion, and there are 18 chapters which covers the whole universe, so to say, but you'll find that not for a minute there was any argument or somebody losing patience. एक एक पूरी सौम्यता का वातावरण था। बीच बीच में भगवान कृष्ण जब अर्जुन के प्रश्न देखते भी हैं तो मुस्कुरा देते हैं। भगवान कृष्ण को तो सब कुछ विदित था और वो अगर चाहते तो इस पूरे डिस्कोर्स को कुछ मिनटों में ही खत्म कर देते। बट आई थिंक उनका आशय ये था, ही वॉन्टेड अर्जुन टू कम आउट विद ऑल हिज वरीज कंसर्न्स, एंड ही वॉन्टेड दैट द सॉल्यूशन दैट ही recommends should be sustainable, and Arjun should see a lot of rationality in whatever he is being told, and therefore Krishna elaborated on all these things. But throughout you'll find there are no stances of somebody raising voice or Krishna finding Arjun not listening to what he is trying to convey, or maybe he is not actually understanding it the way Lord Krishna wants it. Although अगर आप ध्यान से देखें इस पूरे संवाद में एक दो मौकों पर, जैसे भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को क्षत्रिय होने की याद दिलाई, या जब उन्हें लगा कि मेरे बहुत बताने के बाद भी कन्विक्शन इज नॉट कमिंग, तो उन्होंने, जैसे हम 11वें अध्याय में देखते हैं, उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। तो विराट रूप दिखाने का आशय कहीं भी उनको भयभीत करना नहीं था, बल्कि उनके दृष्टिकोण को परिवर्तित करना, रिफाइन करना, क्लैरिफाई करना था। सो इस पूरे संवाद से जो हमें संदेश मिलता वो ये है कि इतने बड़े लोगों के बीच में भी संवाद कितनी सुसंस्कृत तरीके से होता था, जिसके अंदर सौम्यता, जिसके अंदर एक दूसरे के प्रति एकोमोडेशन, टॉलरेंस और एक दूसरे के प्रति बहुत अफेक्शन की भावना हमें नजर आती है। और मैं इसको पूरे इस संवाद का आधार लेके चलता हूँ, और मुझे इससे एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है जो हम जब आगे डिस्कशन करेंगे तो शायद उसका संदर्भ आएगा। कहीं कहीं वो कुछ खो सा गया है, वो संवाद जो हमारी परिपाटी रही, जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारा गौरव है। तो इसलिए आज का टॉपिक उसी के आसपास मैंने थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट किया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है पापा। बट सो बिफोर आई आस्क अनदर क्वेश्चन, आई वांट टू आस्क कि सिविलाइज्ड डिस्कोर्स को अगर हम हिंदी में बोले तो वो एग्जैक्टली अगर एक वन लाइनर अगर उसको इसको कहेंगे बेटा सुसंस्कृत विमर्श। तो सुसंस्कृत विमर्श का मतलब है एक ऐसा विमर्श और इंटरैक्शन जो सुसंस्कृत है, कल्चर्ड है। कल्चर्ड का मतलब ये होता है कि प्रश्न करने वाला और प्रश्न सुनने वाला दोनों में कोई विभिन्नता नहीं है, दोनों एकदम बराबरी पे खड़े हैं। बस फर्क केवल इतना है, प्रश्न करने वाले के मन में कुछ विषाद है, कोई चिंता है, कोई असमंजस है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो उसको क्लियर करने में मदद कर रहा है। तो उसको बोलते हैं सिविलाइज्ड डिस्कोर्स। Civilized discourse, yeah, it should be civilized. No, high temperaments, or tantrums, or somebody when he's not able to understand well, you lose balance and say,
I've already told you once. Why don't you understand? And now I think these are the sanskars that our heritage carries for us. Oh, interesting. So Papa, do we find civilized discourse as a part of our Indian tradition? Indian tradition is so rich, and if I have to give you instances of civilized discourse, I'll have to take you back to the Upanishads time. So Upanishads, as we know, people call them the Bible of Indian culture. Upanishads are known as something whose essence is Bhagavad Gita. So Upanishad actually constructs the foundation of Indian heritage and culture. And you'll find that the Upanishad procedure was a teacher sitting with students and having a free flow discussion where every student is free to raise queries, which could be pretty laughable also, but then the teacher gives the space to the students, and therefore the learning that comes out of this sticks and refines the lives of the students. This is how I also learn from you, no? Yes. Almost every day I sit with him. Yeah. Whenever we are discussing anything, we are replicating the great Upanishads. So we start with Upanishads, but let me give you another very tell you a very interesting story about the Indian heritage. Many centuries ago, in the 8th century, we have all heard about Adi Shankaracharya, who was the exponent of Advait Vedant. And मैं बताना चाहूँगा, गीता प्रसार को जितनी ऊर्जा उस युग में मिली, आदि शंकराचार्य के युग में, वो बिल्कुल बताने लायक है, उतनी बहुत से युगों में नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, और जो हम सब मिलकर प्रयास भी कर रहे हैं. सो आदि शंकराचार्य जो अद्वैत वेदांत के बहुत बड़े दार्शनिक थे, उस जमाने में उनकी टक्कर में कह लीजिए एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम था मंडन मिश्रा, जो उस समय कुमारिल भट्ट नाम के एक बहुत बड़े संत थे, उनके शिष्य थे. सो इन दोनों की अप्रोच में फर्क था. जहां एक तरफ मंडन मिश्रा जो मीमांसा दर्शन के बहुत बड़े एक्सपोनेंट थे, और इस कारण कर्म कांड पे बहुत उनका, रिचुअल्स के ऊपर उनका बहुत ज्यादा एम्फेसिस था, और उनका ये सोचना था कि कर्म कांड या रिचुअल के माध्यम से ही ब्रह्म प्राप्ति हो सकती है. जबकि अद्वैत वेदांत को प्रपोज करते समय आदि शंकराचार्य जो थे वो ज्ञान कांड के माध्यम से वहां पहुंचना चाहते थे. तो ये चीज बड़ी स्पष्ट हो गई कि भाई इनमें से कोई एक ही चीज प्रिवेल कर सकती है, एंड दैट शुड मेक द वे फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन. सो दोनों के बीच में जब ये बहस छिड़ी तो आप देखिए दोनों जो पक्ष है वो एक दूसरे को जब फीलर्स भेजते हैं, संदेश भेजते हैं, तो ये तय होता है कि दोनों एक आपस में बहस करेंगे, और इस बहस में निर्णय हो जाएगा कि किसका विचार सर्वोपरि है, किसका विचार जो है वो डोमिनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा. और दोनों ने एक दूसरे के लिए ये कहा कि अगर मैं आपका पक्ष के आगे हार गया तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा. और उधर जो मंडन मिश्रा थे उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि अगर आप हार जाओ तो आप मेरे शिष्य भी बन जाना, और आप ये अविवाहित रहने वाला भी काम बंद कर दीजिए, आप शादी कर लीजिएगा. तो दोनों में शास्त्रार्थ चालू हुआ. अब आप देखिए ये शास्त्रार्थ चला 6 महीने तक, और हर दिन बैठते थे और सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग देखते थे. उस समय ना टीवी था, ना इंटरनेट था, ना व्हाट्सएप था, ना कुछ था. सो वर्ड ऑफ माउथ से ये चीजें फैलती थी कि शास्त्रार्थ कितना डीप, कितना डिटेल्ड होता जा रहा है. और इस सब की सबसे सुंदर बात ये थी कि आदि शंकराचार्य ने ये कहा कि जो मंडन मिश्रा की वाइफ है जिनका नाम उभय भारती था, वो खुद भी बहुत बड़ी विदुषी थी. उन्होंने कहा उभय भारती जो है वो हमारी अंपायर या जज बनेंगी. ठीक है. और ये जब 6 महीने तक चला और अंत में मंडन मिश्रा हार गए. मंडन मिश्रा के बारे में एक बड़ी शानदार चीज मेरे को अभी बोलते बोलते ध्यान आया. इतने प्रकांड विद्वान थे कि जब उनको मिलने के लिए आदि शंकराचार्य के कुछ मैसेंजर्स पहली बार गए तो वो जान के हैरान रह गए कि मंडन मिश्रा के घर में जो पालतू तोते थे वो भी आपस में संस्कृत के श्लोक बोल के बात करते थे. ये प्रभाव था मंडन मिश्रा का. सो ये 6 महीने जब ये चला और मंडन मिश्रा जब
हार गए तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं, और इस दौरान कोई ऊंचा नहीं बोला गया, किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगाया गया, बहुत ही सिविलाइज, बड़े सुसंस्कृत वे में ये सब चीजें हुई। लेकिन जो ही वो हारे तो उनकी जो पत्नी है उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में तो पत्नी अर्धांगिनी होती है, आपने हराया केवल आधे पार्ट को है, आपको मेरे को भी हराना पड़ेगा। और जो वह भारती हैं उन्होंने वैवाहिक संबंधों के बारे में कुछ प्रश्न पूछने चालू कर दिए। अब बेचारे शंकराचार्य तो अविवाहित थे, ब्रह्मचारी का जीवन बिताते थे, उन्होंने उनसे कुछ समय के लिए हार स्वीकार की। उन्होंने कहा मुझे वापस आने दीजिए। अपनी योग क्रिया से उन्होंने वो सारे ज्ञान प्राप्त किए और आप देखिए कुछ दिनों बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने उभय भारती को भी हरा दिया। और फिर दोनों पति पत्नी तो आप देखिए कितनी सदाशयता, कितना टॉलरेंस है, कितनी एक दूसरे के प्रति एकोमोडेशन। तो ये जो सुंदरता है हमारी, और ये सुंदरता आगे चली। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, मुगल जब शासन था उस दौरान भी जब सम्राट अकबर ने जब दीन इलाही की शुरुआत की तो काफी समय तक वहां पर भी इसी तरह से शास्त्रार्थ हुआ करते थे। और ये बड़ा विचित्र लगता है कि एक मुगल राजा के दरबार में संस्कृत के प्रकांड विद्वान आपस में बहुत ही सिविलाइज्ड वे में डिस्कशन करें। हालांकि ये बात हम सब जानते हैं कि अकबर के बाद के शासकों के दौरान कितना कितना अत्याचार हुआ और ऐसी ऐसी यादें हमारे से जुड़ी हुई हैं जो बहुत सुख नहीं देती हैं। आप इसके आगे चलिए, जब हमारी नेशनल मूवमेंट चालू हुई तो नेशनल मूवमेंट में भी बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे, नेशनल मूवमेंट के टॉप लीडर्स जैसे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इनके बीच में बहुत मतभेद थे। इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष बोस को ले तो उनके भी बहुत से विचार मिलते नहीं थे। लेकिन आप देखिए, आपको छपी हुई बहुत सी ऐसी किताबें मिलेंगी जहां पर एक दूसरे से पत्र व्यवहार करके, चिट्ठियां लिख के, लेटर लिख के उन्होंने इन मतभेदों को खत्म किया। एक दूसरे के प्रति कोई आक्षेप नहीं लगाए, ना ही इस संवाद में कोई गंदगी या कोई ऐसी कोई छिछलापन आने दिया। सो ये हमारी जबरदस्त परंपरा रही है और मैं समझता हूं कि ये गीता से ही फ्लो हो रही है। तो हम जितना भी धन्यवाद दें गीता का कि हमें कितना सुंदर एक स्टैंडर्ड इन्होंने बना के दिया, उतना कम होगा। So this is how we have actually followed the tradition of a civilized discourse in our everyday life, and the credit goes to the great Bhagavad Gita. Beautiful. I think now while you're discussing it, I'm understanding the power of this wonderful concept. जब आपने start किया था बोलना तब मेरे पास थोड़े doubts थे, पर जैसे जैसे आपने उसको elaborate किया, I literally got a lot of understanding about. I'll tell you one very this is the basis of why a discourse turns bad or sour or uncultured. So जैसे if I tell you, भारतीय परंपरा में हम कहते हैं तर्क एंड वितर्क, है ना। तो तर्क एंड वितर्क के कोरस्पॉन्डिंग कौन है? आर्गुमेंट एंड काउंटर आर्गुमेंट। सो मैं आपने कोई बात कही, मुझे लगा कि संभवतः ये ठीक नहीं है या ठीक से कन्वे नहीं की गई है, तो मैं उस पर बड़े ही शालीनता के साथ आपसे डिफर करता हूं और कहता हूं कि नहीं, ये इस तरह से है। यहां तक तो सब चीजें बहुत अच्छी हैं, तर्क वितर्क, आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट। उसके बाद क्या होता है, अधिकांश मौकों पर हमारी ईगो, हमारा एरोगेंस कहीं बीच में आ जाता है, तो हम मुद्दे को भूल जाते हैं। तो तर्क से वितर्क होते होते हम कुतर्क पे पहुंच जाते हैं। और कुतर्क, जिसे हम इंग्लिश में सोफिस्ट्री कहते हैं, उसका बेसिस ही बिल्कुल गलत है। उसमें बेसिस ये नहीं है कि मैं साक्षी के साथ जो डिस्कशन कर रहा हूं उसमें मुद्दे पे बात करूं। मेरा ध्येय बन जाता है कि साक्षी को किसी तरह से नीचे दिखा दूं, चाहे उसके लिए मुझे कोई गलत एग्जाम्पल देनी पड़े, झूठ बोलना पड़े या ऐसी भाषा इस्तेमाल करनी पड़े जो सुसंस्कृत व्यक्ति नहीं करता है। So this is the basis of how discourses turn bad. Quite interesting. So Papa, is this dialogue or public discourse losing its grace in today's time? I'm very sorry to say yes, and but then we have to respect every era, every age. As things change, priorities change,
challenges change, concerns change. तो एकदम से किसी युग को दोष देना अच्छा नहीं है, पर कुछ चीजें साफ तौर पे दिखती हैं. जैसे मैं आपको अगर उदाहरण दूं तो हमारे घरों के अंदर भी आजकल कई बारी कुछ मुद्दों पर हम इतने सख्त हो जाते हैं कि कई बारी किसी को आवाज ऊंची उठानी पड़ जाती है किसी छोटी सी बात पे. संबंध अच्छी बात नहीं है. आप व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स दीजिए, देखिए टेक्नोलॉजी ने हमको इसलिए जोड़ा था कि हम सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी चीजें आदान प्रदान करें ताकि हमारा व्यक्तित्व जो है ज्यादा निखरे और हमारे अंदर एक वो इंद्रधनुषी एक जो है ना एलिमेंट आए. बट व्हाट वी फाइंड इज दैट देयर इज एन अपमैनशिप happening at the social media or rest of the platforms where somebody is shooting from behind somewhere and उसमें कोई ना तो accountability है ना कोई जिम्मेदारी का उसमें कोई एलिमेंट होता है. सो होता यही है कि हम डिस्कस कितनी अच्छी चीज कर रहे होते हैं लेकिन धीरे धीरे हम उस डिस्कोर्स को बड़ा विशेड कर देते हैं और ये चीज विशेड होते होते आप देखिए संसद की बहसों में भी कई बार ऐसा लगा कि समय बहुत जाया हो रहा है, अच्छे मुद्दों पे अधिक समय दिया जाना चाहिए. तो मेरा टू सम अप आई वुड रादर से दैट इट इज सच अ ब्यूटीफुल ट्रेजर दैट गीता हैज given all of us, which is to learn from. If Lord Krishna can be so balanced, if Arjun the great warrior can be so balanced, then why can't we be equally balanced and very clear in our approach and respectful to people who are interacting with us? Absolutely. The dialogue has its genesis in the urge to learn more. It is not to denigrate or maybe annoy or insult or show somebody in bad light. So I think the greatest lesson in my view, we can't make comparisons between the lessons from Bhagavad Gita, but certainly as is the human nature, when we talk about a given lesson, we actually feel that it is really very profound and important, and I believe it has been relevant since more than now 5,000 years. It is my ardent desire that these messages from Gita, which is about the civilized discourse, they now guide all of us, the new generation like you and others, who should feel motivated and make this society a beautiful place, a vibrant place, and a happy family. So I think on this note, maybe we can go back with a conviction that we would have many more such meetings. I have so much to share with you, and in our next sitting, we'll take up another learning from Srimad Bhagavad Gita. Absolutely, we'll do that. And in fact, Papa, while you were talking about civilized discourse, I also realized that in psychology we also talk about the Yes, power you are a of student language. you are a practitioner of psychology. So as a psychologist, we also say that the power of language is so immense that it can really impact your well-being. So I think it also somehow relates here, and I learned a lot today, and I think I'll be using this in my practice. हमें अपनी वाणी को बड़ा मीठा बनाना है. उसी से संवाद मीठा बनेगा. वाणी के संबंध में एक लाइन कहूँगा, फिर हम इस विमर्श को खत्म करेंगे. हमारे शरीर से निकलने वाले जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो पसीना हो, चाहे वो हमारी सांस हो, या हम जो बाकी चीजें शरीर से बाहर निकालते हैं, सब में दुर्गंध होती है. केवल एक वाणी ऐसी चीज है कि अगर हम चाहें तो उसको मीठा बना सकते हैं, और हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम जो भी शब्द बोलें वो इतना मीठा हो कि वो हर एक संवाद को इतना सुंदर बना दे कि जो सॉल्यूशन निकले वो दोनों पक्षों को एक सा जो मंजूर हो और हम किसी दुर्भावना के साथ वापस ना जाएं. और मुझे पूरा विश्वास है भगवान कृष्ण की ये जो सुंदर वाणी जिसने इतने सालों से हमें प्रेरित किया है, आने वाले युगों तक हमको प्रेरित करेगी. Absolutely. So thanks very much. Have Thank a you, wonderful Papa. time. Thank you. God bless You too. everybody. Thank you Jai so Krishna. much. Thank you.